Good morning, students. Welcome back to our channel School of Econ. It's all about economics. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ରିଭିଜନ କରୁଥିଲେ ତାହା ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କନସେପଚୁଆଲି ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଚାପ୍ଟର 1କୁ ସରେଇଲେ। ଚାପ୍ଟର 1 ଆମର ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାପ୍ଟର 2କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚାପ୍ଟର 2ରେ ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 16 ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଚାପ୍ଟର 2କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ ପଢ଼ିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିକିନା ତାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୀତିବାଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମିତି କିଛି ନୀତିବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା। ଆଜିର ନୀତିବାଣୀ, ଭଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି ପାଠ ନୁହଁ ବରଂ ନିଜ ପରିବାରରୁ ସୁସଂସ୍କାର ବି ପାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତୁମର ମାର୍କ ଭଲସେ ରହିଗଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟି ବା ଭଦ୍ର ମଣିଷଟି ହେଇଯିବ, ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ନିଜ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାର ଅଛି। ତୁମ ଆଚରଣରେ ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛ, ନିଜକୁ ସୁସଂସ୍କାର ଦେଇକିନା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେବା, ସାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମିନେଟ୍ ନ ହେଇକିନା ତାଙ୍କ ଦେଇ କେମିତି ଆମେ ବୁଝେଇକିନା ସବୁ ଯାକ କାମ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସୁସଂସ୍କାର ଏସବୁ ସୁସଂସ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ପାଠଟା ଭଲ ପଢ଼ିଥିବା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କଥା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲା ବେଳୁ ତୁ ତାର ଏରା କରୁଥିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ହେବାର ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରତା, ଶାଳୀନତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ନୀତିବାଣୀ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଉନ୍ନୟନ, ଯେଉଁଠିରେ କି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା କୃଷି। କୃଷି ପରେ ଆମେ ଯିବା ଶିଳ୍ପକୁ, ଶିଳ୍ପ ପରେ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ କୃଷି। କୃଷିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ଆମେ କୃଷିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କୃଷିର ଉପକ୍ରମ ପଢ଼ିଲେ କୃଷିରେ, ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କୃଷିର କ'ଣ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାପରେ କୃଷି ନିୟୋଜନର ଢାଞ୍ଚାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବା କୃଷି ଓ ନିୟୋଜନ ଢାଞ୍ଚା ତଥା କୃଷି କେମିତି ଭାବରେ ନିୟୋଜନ ଦେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଜାଳେଣୀ ଯୋଗାଣରେ କୃଷି କେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କୃଷିର ଭୂମିକା କେମିତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ତା ସହିତ ଦରଦାମର ସ୍ଥିରତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେମିତି ଦେଇଛି କୃଷି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ, ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି କର, ଜଳ କର ଏବଂ ଆୟକର ହିସାବରେ କେମିତି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ ହେଇପାରୁଛି ଆମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇବା କଥା ବା ଆୟକର ପକେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ପକାଯାଉନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବି କୃଷିର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଗଠନର ଉତ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପଢ଼ିକିନା କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସରେଇଥିଲେ ବା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेकारी गठन रोच माने कौन जो कृषि क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेकारी मान अच्छे जो मानकर कृषि क्षेत्र जो मान बाहर करदे कृषि क्षेत्र प्रोडक्टिविटी बा उत्पादन क्षमता कौन प्रकार परिवर्तन आसबनी से ही लोक मान कौन कहुए प्रच्छन्न बेकारी अंतर्भुक्त कराए से केमती आम सठिक भाव में परिचालित करने अर्थनीति प्रगति कर विषय आम कौन करते ना आमर कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेकारी और गठन उत्सर पॉइंट रे आम कौन करते सविशेष आलोचना करना कौन करते ना कृषि गुरुत्व को परिसमाप्त करते आज आम कौन करवा पिले आज आम गोटे नुआ सेक्शन को स्टार्ट करवा कृषि जहाँ हूँ भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता भारत में कौन कृषि उत्पादन और उत्पादकता देख पिले भारत हूँ गोटे कौन कृषि प्रधान राष्ट्र यहाँ आम समस्त जानते तो कृषि प्रधान राष्ट्र कृषि कौन कौन एमती उत्पादन हुए पिले दुई प्रकार जिनस उत्पादन हो कृषि कौन कौन उत्पादन हुए गोटे हूँ खाद्य शस्य आ गोटे हूँ अणखाद्य शस्य ए दीटा जिनस उत्पादन हुए गोटे हूँ खाद्य शस्य गोटे हूँ अणखाद्य शस्य जो कोरे भरी जो माने आमे जो जिनस को आमे खाद्य रूपे ग्रहण कर सब खाद्य शस्य अंतर्भुक्त हम जमी धान चाउल गम बाजरा मांडिया और सब हाँ ना आ अणखाद्य शस्य जो गुड़ी को आम कौन कर अर्थकारी फसल जमी कपा होगा झोट होगा चिनाबादाम होगा ए सब जिन कौन हम आमर अणखाद्य शस्य जीव हाँ ना नहीं तो ये सब जिनस उत्पादन कराए खाद्य शस्य को पुणी दुई भाग में विभक्त कर कौन कौन से दुई भाग आम खाऊ धान डाली सॉरी धान जातीय शस्य जमी धान गहम हाँ मांडिया ओरा कौन है ओरा गोटे प्रकार होगा खाद्य शस्य आउ गोटे प्रकार खाद्य शस्य कौन मुग बिरी डाली ओरा सब कौन ओरा डाली जातीय ओरा कौन डाली जातीय खाद्य शस्य आम देश में कौन हो दुई प्रकार खाद्य शस्य उत्पादन कराऊँच मुख्यतः आम कौन कर कृषि उत्पादन को दुई भाग में विभक्त कले जमीक खाद्य शस्य अणखाद्य शस्य पुणी थे खाद्य शस्य को पुणी आम कौन कले पुणी थे दुई भाग में विभक्त करमिक कौन ना धान गहम मांडिया भली खाद्य शस्य और डाली जातीय खाद्य शस्य जहाँ कि मुग बिरी डाली ए सब जिनस जाऊँगी हाँ ना नहीं तो आम देश में आउ गोटे से डाटा कौन कौन ना आम देश जो 70 भाग आम प्रोडक्शन हो कृषि क्षेत्र में कहीं आम जो कृषि क्षेत्र में आम जो उत्पादन प्रोडक्शन हो कृषि की उत्पादन रे कृषि उत्पादन मनकर 100% टोटाल टोटाल के हम 100 भाग रु आम कौन कर 70 भाग आम कौन कर खाद्य शस्य उत्पादन व्यवहार कर खाद्य शस्य 70 भाग खाद्य शस्य उत्पादन हो बाकी 30 भाग कौन बाकी 30 भाग आम कौन कर अण खाद्य शस्य उत्पादन करने व्यवहार कर अण खाद्य शस्य अणखाद्य शस्य व्यवहार कर कृषि उत्पादन उत्पादन गुड़िक माने कृषि उत्पादन गुड़िक कौन कृषि क्षेत्र सीमा वृद्धि और कृषि उत्पादन अभिवृद्धि हाँ ना नहीं ए दीटा जिनस हूँ कृषि उत्पादन उपादान एक कथ कृषि क्षेत्र सीमा वृद्धि करके प्रोडक्शन को बढ़ेबा उत्पादन को बढ़ेबा किंबा कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार आधुनिक कौशल एवं ट्रेंड लेबर बा तालीम प्राप्त श्रमिक को नियुक्ति करके कृषि उत्पादन को बढ़े पार हाँ ना नहीं एक तो कृषि क्षेत्र में सीमा वृद्धि करके कौन कर वृद्धि कर दुई तो कृषि उत्पादन अभिवृद्धि करके वृद्धि कर तो 1950 किसी डाटा आम पढ़ा पिले जो डाटा गुड़ी को तुम कौन कर देख जेहेतु आम इंडियन इकोनॉमिक्स आम टे डाटा सहित खेल कर हाँ ना नहीं प्रत्येक लंग क्वेश्चन कि प्रत्येक 2 मार्किया कि 3 मार्किया क्वेश्चन आम जो डाटा को प्रोवाइड कर एग्जामिनर आम प्रति चिंताधारा बहुत ही पॉजिटिव रमको जो मार्क वेटेज अच्छे से बढ़े देवे बुझे ना नहीं तो डाटा उपर आम टे निहाती भाव में ध्यान देवा पड़ो तो ये सी गोटे डाटा देला पिले 1950-51 चाष जमीन नीट परिमाण के देख 1950-51 चाष जमीन नीट परिमाण था 118.60 न्यूटन जहाँकि एटा 1971 हम पिले भूल कर पड़े 1971 मसीहा बेलू यह वृद्धि पाई 118.60 न्यूटन हेक्टर सी के पलि आसी ना 140.8
8 न्यूटन हेक्टर को से वृद्धि पाई हाँ ना नहीं तापर नीट आबादी जमीर परिमाण स्थिर रही जहाँ देश नीट माने कौन है चेंजेस हाँ ना नहीं आमर नीट आबादी जमीर परिमाण कौन है स्थिर रही जहाँ देश मोट भौगोलिक सीमार 42.83% अच्छे आम देश आमर एरिया हूँ कौन बहुत खराब कली रे हौ छाड़ एटा हूँ आम देश यही आम देशर मोट आबादी जमीर केते परसेंट आम चाष व्यवहार कर ना मोट भौगोलिक सीमार मनकर 42% माने 42.83% बा 43% आम कौन कर जो नीट जा आबादी जमीर चाष जमी आम व्यवहार करुँच 54.44 न्यूट हेक्टर जमी एकाधिक थर चाष होती फल मोट आबादी जमीर परिमाण 195.24 न्यूट हेक्टर को आकलन कर 195.24 हेक्टर को आकलन कर आमर कौन ना आम कहते 140.8 न्यूट हेक्टर आमर जमी अच्छी केते 140.8 न्यूट हेक्टर आम पाखे जमी अच्छी किंतु आमर कौन होची गोटे जमी आमर बारंबार चाष होची तो बारंबार चाष हेले आमर मन कर एठी गोटे जमी अच्छी से जमी मन कर वर्ष जदि गोटे थर चाष हम गोटे थर चाष हम आउ गोटे जमी जे मनकर वर्ष को 4 थर चाष हुए 3 थर चाष हुए चाष हुए 3 थर से कृषि द्रव्य उत्पादन कर तो ये गोटे जमी को आम एमतीकार जमी जदि 3टा आनिबा प्रति वर्ष रे से आम कौन कर 3टा जमीर उत्पादन ये गोटे जमी आम दे दूची गोटे वर्ष रे बिकज एटा गोटे थर करा एटा गोटे थर करा एटा गोटे थर करा प्रति वर्ष रे बट सही वर्ष रे ये कौन कर 3टा जमी जी जिनस उत्पादन हो गोटे जमी आम से उत्पादन कर दौरान तो ए हिसाब रे आमर जो मोट आबादी जमीर परिमाण कौन होची वृद्धि पाउची कौन पाई एई जो एटा कौन कले ए जो 4 थर बा 3 थर आमर जो ये उत्पादन होची याको कौन कले ये ऐड ऑन हबो ना ये गोटे जमी सिना ये केतेटा जमीर उत्पादन क्षमता आम दौची ना 3टी जमीर गोटे जमी हेकिना आम कौन करछि 3टी जमीर उत्पादन क्षमता आम प्रदान करछि तेणुकरी एई जमीर जो उत्पादन क्षमता को कौन करा होची या ऐड ऑन करा जाउची जहा फल मोट आबादी जमीर परिमाण केते जाउची ना 195.24 न्यूट हेक्टर रे पहुंची जाउची यही कृषि सघन कृषि सघनता जो संभव होची कृषि सघनता माने कौन आम जो कृषि क्षेत्र में कौन कर गोटे जमी को ठीक भाव में कौन कर चाष कर पड़िया न पकईकिना कौन कर बारंबार चाष उपयोगी करुँच जहाँफल कौन हो आमर गोटे जमी आम बारंबार चाष कर विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन कर वर्षर विभिन्न समय मध्य तो यही जो चाष प्रक्रिया को कौन कहुए ना सघन कृषि कहुए कृषि सघनता को सुष्ट सुस्थिर एवं न्याय संगत कृषि अभियान बोली बुझा जाए एथिरे स्थायी प्रकृति रक्षा कृषक और उपभोक्ता सुस्थता और न्याय संगतता कृषि पद्धति पालन को सम्मिलित करें हाँ ना केमती जमी ठीक से भल भाव चाष हम कृषक मान ठीक भाव में केमती सब टाइमिंगली से चाष करें श्रमिक मैंने केमती से नियोजन हो पारे तो गोटे जमी जदि सब कम रहा तो कृषक मैंने भी नियोजित हो रहे श्रमिक मैंने भी नियोजित हो रहे जहाद्वारा से आय रे कौन हम अभिवृद्धि हम तो यह द्वारा कौन हो जो कृषि सघनता द्वारा कौन हो ना यही सब क्षेत्र में कौन हो उन्नति हो आबादी जमी भारत में अनेक अंचल विशेषतः ग्रामांचल अंचल आबादी जमी कृषि जमी पृथक हुए जहाँ चाष और संबंधित कार्यकलाप व्यवहार हुए आबादी जमीर मालिकाना और व्यवहार अधिकार स्थानीय कानून और परंपरा द्वारा नियंत्रित होता है जमती गाँव में किसी जमी अच्छी से जमी को कौन कर गाँ लोक मैंने कहते ना एवं आम गाँव में गोटे अच्छी कोठर जमी कोठ जमी हाँ ना कोठ जमी अच्छी आम गाँव से कोठ जमी को कौन कर प्रति वर्ष कौन कर लीज रे दि जाए जे आम गाँव कोठर से जमी ये जमी को किए चाष कर सी चाष कले सी कौन कर चाषर उत्पादन किसी परिमाण कौन कर गाँ कोठ को दब जोटा कि गाँ कोठर विभिन्न प्रकार आनुष्ठानिक कार्य व्यवहार कर से धान को कि चाउल को बिकिना आर्थिक अंश रूप से कोठरे रखा कि
ସେଇ ଧାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆବାଦି ଜମି ଅଛି ଏଇ ଆବାଦି ଜମିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆବାଦି ଜମିର ମାଲିକାନା ଓ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ କାନୁନ ଓ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ଆମର ଯୋଉ କୋଠ କଥା କହିଲି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଶର ନିଟ୍ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଓ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ କୃଷି ସଘନତା ଯେ ମୋଟ ଆବାଦି ଜମିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହଉଛି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଜମି ଗୁରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଜମି ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ରୋଡ ହଉଛି, ରୋଡ ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ପିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ରୋଡ ହବ ତାହେଲେ କାହାର ବିଲ ଥିବ ସେଇ ବିଲକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲ କିଣିକିନା ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏବେ ଏପଟେ ରୋଡ ହବ ତ ରୋଡରେ ତମେ କ'ଣ କର, ଏବେ ରୋଡ ହବ ତ ତମେ ତମ ବିଲ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ତମ ଗାଁକୁ ରୋଡ ହବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ହବ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଚାଷ ଜମି ଯୋଉଠି ଧାନ ଚାଷ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ରୋଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଳକାରଖାନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାଟେ ହବ ସେଇଠି ଯାହା ବି କିଛି ଚାଷ ହଉଥିବ ସେ କ'ଣ ହବ ସେ ଚାଷ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ସେଇଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳକାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ବସେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ଯୋଉ ଚାଷ କାମ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଯାହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ କରି ଏମିତି ହେଇକିନା କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ବଳକା ରହୁଛି କ'ଣ କିଛି ମାତ୍ର ଜମି। ଏଇ କିଛି ମାତ୍ର ଜମିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଠି କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷେ ତାହେଲେ 3 ଥର ଚାଷ କରିବାକୁ, ତ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ନା କୃଷି ସଘନତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କୃଷି ସଘନତା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଆମେ କୃଷି ସଘନତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ଆମର ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା? ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। ଏବେ କ'ଣ ପଢିବା ଆମେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ। ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କେତେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ତାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଡାଟା ହିଁ ପଢିବା। ତ 1950-51 ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲେ, 1950-51 ରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 51 ନିୟୁଟ ଥିଲା, ଯାହାକି 2013-14 ରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି 264.7 ନିୟୁଟ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେଉଁଠି ଥିଲା 51 ନିୟୁଟ ଟନ, ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି 264.77 ନିୟୁଟ ଟନ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ କି ଓରାକ ଆଗକୁ ତମେ ପଢିବାକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଆମର ଯୋଜନା ପଢିବ, ଯୋଜନାରେ ବି କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଡାଟା ହିଁ ତମର ମେନସନ କରିବାର ଅଛି। ତ ମେନ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଡାଟା ହିଁ ତମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ୟବହାର ହବ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 1950-51 ମସିହାରେ ଆମର କେତେ ଥିଲା ପିଲେ 21 ନିୟୁଟ ଟନ ଥିଲା, ବଟ୍ 2013-14 ରେ ତାହା କେତେ ହେଇଯାଇଛି ନା 106.54 ନିୟୁଟ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖିବା ସେମିତି, ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ 1950-51 ରେ 6.6 ନିୟୁଟ ଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ 2013-14 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା କେତେ ହେଇଯାଇଛି ନା 95.91 ନିୟୁଟ ଟନ, ମାନେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 1950-51 ରେ କେତେ ଥିଲା 8.4 ନିୟୁଟ, ଏଟା ଟନ ରେ ପିଲେ, ଟନ ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇକି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା टाइपिंग टिके मिस्टेक होची पिले टन ना भूल माने आउटे भूल भाबियो को सर माने कोन सब खराब खराब पाठ पढौचंदी। हां स्पेलिंग मिस्टेक करि आउची से गूगल इनपुट टूल रे सब टाइप कला कोन होई पिले ना हला टन टन थिला बेले 2013-14 मसिया रे ताहा 19.27 न्यूट, एटा ठीक अछि, टन को वृद्धि पाइछि। 1950-51 ରୁ 2013-14 मसिया तैल उत्पादन मध्य केते गुण वृद्धि पाइछि 5 गुण। 1950-51 जदि 5 न्यूट टन न्यूट गैलन हमर होतला ताले बे कोन हे जाइछि 25 न्यूट गैलन हे जाइछि तैल उत्पादन, हो ना नै।
आखु उत्पादन 9 गुण वृद्धि पाई। आखु उत्पादन केते गुण वृद्धि पाई? 9 गुण। उक्त समय अंतराल तुला उत्पादन 3 यूनिट बेल रु 36.5 न्यूट बेल को वृद्धि पाई। तुला उत्पादन कौन वृद्धि पाई। तो ये गोटे जिस कौन जानले सब क्षेत्र में कौन है विकास निहाती भाव में देखा जाइए। सब क्षेत्र में कौन है विकास आमर देखा देइछि। हाँ ना नहीं? तो ये गला आमर कृषि उत्पादन को क्षेत्र में केते उत्पादन होइछि सब डाटा मु शॉर्ट रे दे दीची। तमे एगुडा को घोषि दबो। ठीक अछि। तापर आसला कृषि उत्पादकता। पिला माने कृषि उत्पादकता रे दुईटी दिग अछि। कृषि उत्पादकता माने कोन? कृषि उत्पादन तो हो ठीक अछि एति होछि। मने कर देखो एडा हम देश देश नाही हम गाँ र कथा नियो। एडा हम गाँ। एडा हम गाँ। गाँ रे केते लोकर जमी अछि? गाँ रे गुडाई लोकंकर जमी अछि। गुडाई लोकंकर जमी अछि। सब लोकर जमी मिसिकिना केते धान करछन ना 100 क्विंटाल कौन करछनी ना धान प्रोडक्शन करिछन। हेले एडी कौन अछि? एडी हमर हां एडी कौन हिची हमर ना मने कर 10टा जमी अछि। 10टा जमी रु कौन हिची 100 क्विंटाल हमर कौन हो जाइछि ना हमर धान उत्पादन होइछि। 100 क्विंटाल कौन हिची हमर धान उत्पादन होइछि। तो 10टा जमी रु केते हिची ना 100 क्विंटाल। तो प्रति जमी पिछा कौन हैला 10टा ना 10 क्विंटाल लेखाए क्विंटाल जदि एवरेज रे पकेइबा। किंतु तमे गोटे कोटा भाबिलो कोन एहा सबले संभव जे समस्त समान प्रकार उत्पादन होबो? एटा केबे संभव कि? ना केबे संभव नुह। बिकॉज ये मे बी हल रे चाष करथुबो जमी कोन करथुबो हल करथुबो। ये मे बी ट्रैक्टर यूज करथिबो। ये मे बी सारा यूज करथिबो। ये मे बी पीडिया यूज करथिबो। ये मे बी पीडिया यूज करथिबो। ये मे बी भलो टिके लेबर यूज करथिबो जे कि जमीर कति फति मारी किना ताको कोन करिथिबो भलो भाबरे चाष करिथिबो। तो एई हिसाब रे कोन होची आम जदि गाँ रे भी देखिबा ओवरऑल जदि एति हुए कार केते हो मे बी के 5 क्विंटाल देथिबो किए 15 क्विंटाल देथिबो किए 20 क्विंटाल देथिबो। एई हिसाब रे कोन हुए ना निज निजर उत्पादन करंती। तो एइटा कोन कह जाय ना जमीर जो निर्दिष्ट उत्पादन परिमाण अछि जो हिसाब रे आमे मे बी टेक्नोलॉजी यूज करी कि किबा खत पीडिया यूज करी कि ना किबा आमे लेबर यूज करी कि ना जदि आमे जमीर उत्पादकता को बढ़ौछंती बा उत्पादन परिमाण को बढ़ौछंती ताको कोन करै जिवो ना कृषि रो उत्पादकता को जिवो। तो कृषि उत्पादन रो दुईटी दिग अछि। कोन से दुईटी दिग पिले ना देखो एडे कृषि उत्पादन से दुईटी दिग देला। एक होला श्रम उत्पादन क्षमता दुई होला भूमि रो उत्पादन क्षमता। हाँ ना नहीं? श्रम उत्पादन क्षमता गोटे भूमि रो उत्पादन क्षमता गोटे। भूमि रो उत्पादन क्षमता बेले कोन पिले ना गोटिए हेक्टर किबा गोटिए एकर किबा गोटिए भरण जमी रे जेतिकी धान उत्पादन हेई परिबो ताको कोन कहवा जिवो सेई जमी रो उत्पादन क्षमता कहवा जिवो। मन कर हमर गोटे भरण जमी अछि एपटे भरण कहवा जाय हमर हाँ ना नहीं? मन कर हमर एक भरण जमी अछि। से एक भरण जमी रो मु मन कर दुई भरण धान उत्पादन कली। तो एडा होची एई एक भरण जमीर उत्पादकता। हाँ ना नहीं? मन कर एडा हैला भूमि रो उत्पादन क्षमता। एबे श्रम रो उत्पादन क्षमता आसीबा। श्रम रो उत्पादन क्षमता हेले एठी जो एक भरण जमी रे ए गोटे लोक काम करूथला से जहा टेक्निक यूज करथला बुझिला नै एटा मन कर राम काम करथला। राम काम करथला। एबे मन कर एई जमी रे श्रम रो उत्पादन क्षमता मन बुझ एई जमी रे राम सहित एबे कोन हैला आसिला हेरी हरि। राम सहित कोन हैला हरि। राम प्लस हरि ए दि जण आसी काम कले। ए दि जण काम करिबा फल रे हमर जो गोटे भरण जमी रे दुई भरण उठला सेटा कोन हैला तीन भरण हो गेला। तो एक्स्ट्रा जो एक भरण आसिला एक भरण जो उत्पादन हैला ताहाको कोन कह जे ना श्रम रो उत्पादन हाँ ना एक भरण जमी रे राम चाष करी दी भरण आदाय करथला। तापर से एक भरण माने जमी रे राम आ हरि मिसिक चाष करी कोन कले तीन भरण धान उत्पादन कले। ता द्वारा कोन हैला एक भरण रो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हैला बा उत्पादन हैला। तो एक भरण को कोन कह जिवो ना जो एक्स्ट्रा श्रम रो उत्पादन क्षमता बोली कुहा जिवो। बुझिला श्रम रो उत्पादन क्षमता कोन आउ जमी रो उत्पादन क्षमता कोन
एटा हे जाइतला तमर श्रम आ जमीर उत्पादन क्षमता बुझिला ना किए केटी प्रोडक्शन करि पाउछि मन कर जमी एकुडिया जदी जमी रे किछि कोन तमे ता से धान उठी पड़ला गजा पड़िगिना तो सेटा जमीर उत्पादन क्षमता हैला मु गली धान बुणिली बुणी सारला परे जहा उत्पादन हैला सेटा मोर उत्पादन क्षमता जमी सहित हाँ ना नहीं मु गोटे लोक लागितली आ गोटे लोक लागिली गुरु आउ डिए भल धान उत्पादन हैला तो सेटा कोन कहै छै श्रमर उत्पादन क्षमता गोटे जमी रे गोटे छोटिया जमी रे गोटे भरण धान उत्पादन होछि सेटा से जमीर उत्पादन क्षमता गोटे 2 हेक्टर जमी रे 3 भरण धान उत्पादन होछि सेटा से 2 भरण जमी रे 3 भरण धान उत्पादकटा हैला माने 2 भरण जमी रे सेटा उत्पादन क्षमता तो एही हिसाब रे रहुछि हमरो उत्पादकता हाँ ना नहीं तो उत्पादकतार दुईटी दिग अछि जोडा गेला श्रमर उत्पादन क्षमता आ गोटे हैला भूमिर उत्पादन क्षमता ए विषय आम आलोचना करते एबे चले देखिबा आम देश रे केमती कोन उत्पादन क्षमता अछि भूमिर उत्पादन क्षमता को हिसाब रे अग्रगति हेछि किबा को हिसाब रे सेडा अछि से विषय आमे कोन करिबा देखिबा देखो एटा गोटी से डाटा देछि कोन से डाटा देछि ना भारत रे हेक्टर प्रति कृषि हाराहारी उत्पादिता पृथ्वीर अन्य देश उत्पादिता मध्य रे एक तुलनात्मक चित्र एठे देछि क्विंटाल रे कोन हेछि आम भारत रे जो हेक्टर प्रति केते आमे खाद्य शस्य उत्पादन करूछंती एवं सेई जिनिस अन्य देश रे केते उत्पादन होछि से सब जिनिस आमे कोन करिबा बे देखिबा एटे देखो फर्स्ट कॉलम रे से कोन देछि कृषि द्रव्य रो नाम उरा देछि जेमति खाद्य शस्य हेगला धान गहम मक्का तापरे अण खाद्य शस्य हेगला चिना बादाम आखु तुळा ओरा सब देछि ह ना नै तापरे एडे 2012 त्रैवार्षिक शेष रे पृथ्वी रे हाराहारी उत्पादिता एटा कोन हेछि से पृथ्वी रो देखैछि एटा कोन पृथ्वी रो हाराहारी उत्पादिता देखैछि ता सहित 2012 त्रैवार्षिक शेष रे भारत रे हाराहारी उत्पादिता एटा भारत रो हाराहारी केते उत्पादन हेछि सेटा देखैछि तापरे सर्वाधिक उत्पादिता देश 2012 वार्षिक वर्ष शेष होता को देश माने सर्वाधिक उत्पादन करिसनि बुझिला ना नै तो एटी देखिबा आगो देखिबा 2012 रे त्रैवार्षिक शेष रे पृथ्वी रो हाराहारी उत्पादन केते थिला पृथ्वी रे हाराहारी केते थिला तापरे भारत रे हाराहारी केते अछि से विषय हम आलोचना करबा देखो खाद्य शस्य फास्ट देखिबा धान उत्पादन रे पृथ्वी रो हाराहारी केते थिला ना हाराहारी उत्पादिता 43.97 क्विंटल थिला 43.97 क्विंटल थिला हाँ ना नहीं किंतु भारत रे ता 35.14 क्विंटल तापरे गहम 30.94 क्विंटल भारत रे ता 30 पाखा पाखी सेम मक्का 50.97 एडा 23.21 हाँ ना नहीं ठीक सेमती अण खाद्य शस्य चीना बादाम 16.26 क्विंटल आखु सॉरी भारत रे 12.12 क्विंटल 16 को 12 टिके कमिछि आखु 704.70 क्विंटल भारत रे ता 692.26 क्विंटल ठीक सेमती तुळा 7.96 क्विंटल विश्व रे भारत रे ता 05.17 5.61 क्विंटल ए हिसाब रे हमर कोन हेछि ना हाराहारी उत्पादिता एति अछि हाँ ना नै आउ जदि आमे देखिबा सर्वाधिक उत्पादित देश धान उत्पादन रे किए सर्वाधिक मिश्र तापरे गहम रे ग्रेट ब्रिटेन मक्का रे युक्त राष्ट्र अमेरिका चीना बादाम रे युक्त राष्ट्र अमेरिका आखु रे पेरू ऑस्ट्रेलिया तुळा रे पूरा तांकर उत्पादन क्षमता देछि बुझिला ना नै 2012 डाटा उरा तो तमे भाबुतो सार एठे तो सब भलो सर्वाधिक उत्पादित देश मानक मध्य रे सब तो उरा पळेले हम देशर ना काई गोटे लाइलनी पिला माने हम देशर ना अछि हम देश मिल्क प्रोडक्शन रे फास्ट काई रे मिल्क बा क्षीर उत्पादन रे क्षीर उत्पादन हम देश कोन फास्ट अछि सेमती धान रे द्वितीय सेकंड गहम रे सेकंड फल और पनीपरिबा रे सेकंड हैला ए सब जिंस रे हमर कोन अछि भारत द्वितीय एवं क्षीर उत्पादन रे प्रथम स्थान नि गुडाय अछि बुझले ना नै तो ए सब डाटा तमे टिके कंटेस्ट करिवो तापर आसे श्रम रो उत्पादन क्षमता हम भारत इंग्लैंड और सब देश रे श्रम रो उत्पादन क्षमता केते अछि से हम देखिबा हां नै कृषि क्षेत्र रे श्रम रो उत्पादिता देखो देश नाम एडी देछि हाराहारी उत्पादिता टंका रे बुझला नै केते टंका रे से माने उत्पादन करि पारछनी भारत केते 1213 इंग्लैंड 16456 जापान 18120 अमेरिका 19264 जर्मनी 27690 बुझिला ना नै तो एही हिसाब रे देखिया गले
आम भारत देख सबुठारु कम टंका पाउछि काहे हाराहारी उत्पादित जो तांकर रहउछि बहुत बहुत ही कम टंकार से कोन करछि उत्पादन करि पारछि हम देश श्रमिक किंतु बाहर देश श्रमिक माने केते टंका उत्पादन करूछनी हाराहारी 16,454 18,120 19,264 27,000 माने सेमानकर उत्पादन क्षमता केते अधिक केते टंका अधिक से माने उत्पादन क्षमता करि पारछनी बट आम देश टिके कौन अच्छी पछुआ सी सब क्षेत्र में बिकज आम देशर जो श्रमिक मैंने कौन बास आम देश जो कृषि क्षेत्र में नियोजित होगा लोक मैंने कौन होती एक तो प्रच्छन्न बेकारी रोचे दुई में से अनट्रेन रोचे से तालीम मिल न था सठिक भाव में कार्य करने जानी ना कौ विहन कौ विहन पकेले कौ धान हम कि कौ विहन पकेले भलसे धान हम क्यों जमी क्यों चाष करने कथा ए सब जिनस से पाखे से भल भाव में तथ्य न था तेणुक से कौन करना एठी भल भाव में उत्पादन क्षम कर हाँ ना नहीं तो जेहेतु तालीम अभाव अच्छी जेहेतु आम देश में प्रच्छन्न बेकारी मान संख्या सबुठ अधिक तेणुक कौन हुए ना आम देश जो हाराहारी उत्पादिता जो अच्छी ताहा बहुत ही कम अच्छी बुझला एति आज तुम कृषि उत्पादन उत्पादकता और विभिन्न उत्पादन क्षमता आम देश को स्थान में अच्छे से सब डाटा ये सब डाटा को घोषिब लंग क्वेश्चन आसिले सब डाटा को टाइम लिखिब है एति आज क्लास आई होप क्लास टी बुझा पड़ी जदि भी किसी बुझा पड़ुनी कमेंट सेक्शन रे अच्छी कमेंट सेक्शन रे पचार क्लास को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो भलसे पाठ पढ़ो और निज लाइफ को आगू बढ़ाओ ओके टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय।